रिद्धि हाँ रिद्धि रिद्धि। रिद्धिया बेटा, अभी क्या है ये? हाँ सर हाँ समझा। हाँ ओके, तो ये डाउट तुम्हारा क्लियर किया। अभी मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लास्ट टाइम ये चैप्टर आज जो कितने बच्चे नए आए अभी तक? आज कितने बच्चे नए आए? सर मी आफ्ताब। हम नहीं आते हैं कितने? सर मे बी 3। तेरा जो नाम है उसका नया बच्चा, उसका नाम क्या है? सर मेरा नाम सर आफ्ताब है। आफ्ताब। दूसरा कौन है? तुषार। तू दूसरा कौन है? सर तुषार। तुषार ओके। और कोई है? नहीं ना? ओके चलिए। तो देखिए मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। मैं खाली चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ जो बच्चे नए आए। ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है। दिस चैप्टर टू गेट कंप्लीटेड टुडे। ये चैप्टर में हमने पहले ये देखा है क्या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। What we have seen, what are electrolytes and what are non-electrolytes. Electrolyte conduct electricity. It does not conduct electricity. Electrolyte conduct electricity. Non-electrolyte does not conduct electricity. Okay. Electrolyte में ions होते हैं, non-electrolyte में no ions आ जाते, right? Then electrolyte conduct electricity because they contain ion, they do not conduct electricity. Electrolyte दो टाइप के होते हैं, strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte produce more ions, weak electrolyte produce less ions. क्यों? Because इनका degree of dissociation high रहता है. Degree of dissociation is high. Degree of dissociation is low. Degree of dissociation is low. Strong electrolyte do not in equilibrium, no equilibrium is attained. इसमें equilibrium attain होता है. Law, Oswald dilution law, not applicable. Oswald dilution law applicable. तो ये है strong and weak electrolyte. Then we have seen water acid and water bases. We have seen three theories. इसके ऊपर पहले theory Arrhenius theory, दूसरी theory का नाम है Lowry and Bronsted theory, Lowry and Bronsted theory, and theory का नाम है Lewis theory. So these are different theories of acid and base. We have seen all these theories in detail. Then we have seen strong acid and weak acid.
Then we have seen equilibrium constant. What we call as dissociation constant. Dissociation constant or equilibrium constant. So these are different theories, and base. Then we have seen Oswald dilution law. उसका डेरिवेशन देखें of Ka is equal to alpha square C and Kb is equal to alpha square C. ये दो डेरिवेशन. Then we've seen ionic product of water. Ionic product of water. Kw is equal to concentration of hydrogen ion into concentration of OH ion, and it is equal to 1 into 10 raised to minus at 298 Kelvin. उसके बाद हमने देखा what is pH and what is pOH and relation between pH and pOH. pH plus pOH is equal to 14. ये रिलेशन हम करके देखा. फिर इसके पर न्यूमेरिकल्स देखे, सम्स न्यूमेरिकल्स ऑन pH और Oswald dilution law. इस पर हमने न्यूमेरिकल्स देखे. उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन आयन इफेक्ट. ये भी हो गया. उसके बाद हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, 4 टाइप के सॉल्ट्स देखे हमने. 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. उसके बाद हमने देखा बफर एंड टाइप्स ऑफ बफर. यहाँ तक हमने किया एंड इट्स एप्लीकेशन. लास्ट में हमने एप्लीकेशन किया. दैट वाज लास्ट टाइम. टुडे वी आर गोइंग टू सी new part today, and that will be the last part of this chapter, and that is called as solubility product. Solubility product. Okay. So I'm starting today the chapter called ionic equilibrium का last part, solubility product. To understand solubility product, we must know what do you mean by sparingly soluble salt. What is sparingly soluble salt? Now when you talk about salt, तो हमारे दिमाग में एक ही आता है, नमक. Salt, common, that is called common salt. There are many types of salts, and there are different examples of salts. Now what is sparingly soluble salt? Generally when
salt in water, पानी के अंदर डालते, सॉल्ट को पानी में डालते, salt is soluble. And you get a solution. You get a solution. Salt is soluble and you get a solution. But there are some salt which are soluble in water to very less extent. सॉल्ट को जब पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व होता है और बाकी का सॉल्ट अनडिसॉल्व रहता है। जैसे कॉमन सॉल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो वो पूरा का पूरा सॉल्युबल, पूरा सॉल्युबल रहता है। यू गेट सॉल्ट सॉल्यूशन, पूरा हल डिसॉल्व। ओके, अगर हम और डालेंगे सॉल्ट तो वो भी डिसॉल्व होगा, और डालेंगे सॉल्ट तो अब डिसॉल्व नहीं होगा। अब डिसॉल्व नहीं होगा, जब एकदम ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा करके सॉल्ट अनडिसॉल्व रहेगा नीचे की तरफ एंड ऊपर सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि हमने हद से ज्यादा सॉल्ट डाला। वी हैव एडेड मोर सॉल्ट, सो व्हेन यू ऐड मोर सॉल्ट, most of the salt dissolve. Hello, sir, your voice is not coming. Voice is not coming. मैं तो बोल रहा हूँ। आ रहा है सर। सर आ रहा है आपका वॉइस। आ रहा है सर। Hello, are you getting? Yes, sir. आ रहा है sir. आ रहा है ना salt? Okay. When you put a salt in water, most of the salt dissolve. But if you add more and more salt, it will dissolve and some of the salt will remain undissolved. Some salt will remain undissolved. अब इस solution को कहते हैं saturated solution. क्या solution? Saturated solution. यानी जो solution में बहुत सी चीजें dissolve होगी और बाकी की undissolved रह जाती, बाकी की क्या रहती? अनडिसॉल्व रहती। ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मैं एग्जांपल NaCl का दिया हूं कि आप लोग को मालूम है NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट, घर में जो नमक खाते हैं वो NaCl। नाउ मैं बोल रहा था वाटर स्पेरिंगली सॉल्युबल, द सॉल्ट व्हिच आर डिसॉल्व टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, the salts which are dissolved very small extent are called sparingly soluble salt. यानी बहुत कम डिसॉल्व होते वो और बाकी का अनडिसॉल्व रहता है। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट जब हम पानी में डालेंगे तो हमें सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन वो सॉल्यूशन ऐसे दिखता है। ज्यादा करके सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठा रहता है। अनडिसॉल्व सिल्वर क्लोराइड एंड ऊपर जो डिसॉल्व रहता है वो सॉल्यूशन में रहता है। okay? लेकिन जो डिसॉल्व होता है वो बहुत कम रहता है और जो डिसॉल्व होता है वो आयंस के फॉर्म में होगा।
यानी सिल्वर क्लोराइड, के अंदर हम एक्वस डालेंगे, एक्वस का मतलब पानी, तो हमें मिलेगा Ag ion and Cl ion and there will be equilibrium. सिल्वर क्लोराइड जब पानी में डालेंगे तो जो सॉल्ट डिजॉल्व होगा वो आयन के फॉर्म में होगा, यानी सिल्वर क्लोराइड आयोनाइज होगा सिल्वर और आयन क्लोरीन आयन में, अब ये अनडिजॉल्व सॉल्ट रहेगा और ये डिजॉल्व आयोनाइज सॉल्ट, डिजॉल्व जो डिजॉल्व हुआ है और आयोनाइज सॉल्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर इसमें 1000 मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में डाले, हमने कितने डाले 1000 मॉलिक्यूल, एग्जांपल ऐसा नहीं होगा, खाली समझने के लिए। तो 1000 मॉलिक्यूल में से 5 या 6 मॉलिक्यूल होंगे, 5 मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो गए, तो कितने बच गए 995 अनडिजॉल्व। ऐसे होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मैं एक एग्जांपल देके बता, हमने सिल्वर क्लोराइड डाले, स्टार्टिंग में वह 1000 मॉलिक्यूल थे सिल्वर क्लोराइड के सॉलिड के फॉर्म में, से 5 मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो गए और 995 अनडिजॉल्व रह गए। तो अनडिजॉल्व इनिशियल के एकदम करीब है, देखो 995 1000 में कोई फर्क नहीं, यानी होता है डिजॉल्व, थोड़ा सा डिजॉल्व। तो ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, हम ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के ही बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर ही पढ़ाया जाएगा। ओके, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब समझे, द सॉल्ट विच डिजॉल्व टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट are called as sparingly soluble salt, example silver chloride। और जो डिजॉल्व होता है वो आयोनाइज होता है, जितना सॉल्ट डिजॉल्व होता है वो आयन के फॉर्म में डिजॉल्व आयन में कन्वर्ट। ओके, दूसरा एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम फ्लोराइड। Calcium fluoride is also sparingly soluble salt. When you put in water, it will form calcium ion and 2 fluoride ion, and there will be equilibrium between dissolve and undissolved. And dissolve salt. There will be equilibrium between them. Okay, so this equilibrium. This is called solubility equilibrium. Equilibrium. अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, ये आपने 11th पे पढ़ा है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसे दैट स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जितना सॉल्ट डिसॉल्व होता है आयन वापस सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो स्टेट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी और इक्विलिब्रियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द वर्ड सॉल्युबिलिटी। What is the meaning of solubility? I told you that salt dissolve to very small extent. Salt dissolve to very small extent. The quantity of the salt, number of moles of compound that dissolve to give 1 liter of saturated solution is called as solubility. Solubility, it is defined as solubility or the amount of a substance, of a compound
amount of a substance in gram that dissolves that dissolves in 1 liter of solution is called solubility. It is denoted by S. Okay, is denoted by S. We are seeing what is molar solubility. Molar solubility. The number of moles of a compound dissolves to give 1 liter of saturated solution, 1 liter of saturated solution is called its molar, it's called its molar solubility. एग्जाम्पल देता हूं तो आपको समझ में आएगा. I am taking example of silver chloride. If I take solid silver chloride और 1 लीटर पानी में डाल देता हूं, if I take solid silver chloride and I dissolve it in 1 liter of water, it will dissolve and silver ion and chlorine ion will be formed. Now silver chloride 1 लीटर पानी में, 1 लीटर solution में only 10⁻⁻5 moles of silver chloride will dissolve. In 1 liter solution, only 10⁻⁻5 moles of silver chloride dissolve. So, solubility of silver chloride -5 mole per liter. Which solubility? Molar solubility. Molar solubility of silver chloride is 10⁻⁻5 mole per liter. तो हर एक सॉल्ट की solubility अलग अलग होती है. It is not fixed. The solubility of the salt differs. All salt have different solubility. We are talking about sparingly soluble salt. मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, ये सब sparingly soluble salt है. तो solubility क्लोराइड की 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर. आप कितना भी सिल्वर क्लोराइड डालो 1 लीटर पानी में, सिर्फ इतना यानी 5 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व होगा, बाकी का अनडिसॉल्व रहेगा. So solubility is what? Is the amount of salt which has dissolved in its saturated solution. तो हर एक salt की solubility different रहेगी. It is not fixed. Okay, so that was solubility.
Now, solubility is expressed in unit. क्या होगा भाई? Solubility is expressed in mole per dm cube. मोल पर डीएम क्यूब का मतलब, डीएम क्यूब का मतलब लीटर, और वी राइट मोल पर लीटर, एक ही वर्ड होता है, और वी राइट इन ग्राम पर डीएम क्यूब, ग्राम पर डीएम क्यूब. ओके, इट इज डिनोटेड बाय एस, सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाय एस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we'll see what do you mean by solubility product. बच्चे once again वापस बोल रहा हूं कि ये जितना भी है हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं. सॉल्युबल consider sparingly soluble salt. एग्जाम्पल देता हूं, बेरियम सल्फेट. is dissolved in water to get its saturated solution. Saturated solution. तो बेरियम सल्फेट को पानी में डाल दिया तो वो डिसॉल्व होगा, एंड देयर विल बी, इट विल जो डिसॉल्व होगा वो आयन के फॉर्म में होगा, जो डिसॉल्व होगा वो आयन के फॉर्म में होगा, सल्फेट. बेरियम सल्फेट ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. This is dissolve and ionize. This is undissolved. And there will be equilibrium between undissolved salt and ion, or dissolve and ionize. If you apply law of mass action, law of mass action ये 11th में पढ़ा है equilibrium chapter में. So we'll get K is equal to barium का concentration, SO4 concentration upon barium sulfate concentration. Concentration of barium यानी ये upon barium concentration. Now, as barium sulfate is sparingly soluble salt, the amount of undissolved salt is same as amount of undissolved salt is same as solid barium sulfate. यानी जो स्टार्टिंग आई वो थोड़ा सा कम है. जैसे मैं एग्जांपल दिया आप लोगों को, क्या है
1000 है, 1000 में से 5 डिजोल्व हो गया, 995 बच गए, तो 995 अनडिजोल्व, वो जो स्टार्टिंग में उसी के हिसाब से बराबर है, यानी थोड़ा बहुत कम है लेकिन इज ऑलमोस्ट सेम। तो वैसे यहां पर भी एप्लीकेबल है, यानी बेरियम सल्फेट डिजोल्व हो गया और जो अनडिजोल्व हो गया वो बहुत, यानी बहुत कम डिजोल्व हो गया, तो जो अनडिजोल्व है वो सेम बेरियम सल्फेट के बराबर है इनिशियल। तो व्हाट consider that the barium sulfate concentration is constant, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया, आया है थोड़ा बहुत डिजोल्व हो गया लेकिन वो बदलाव बहुत कम आया, तो वी कंसीडर दैट बेरियम सल्फेट concentration is constant and that we write as K dash। तो K into barium SO4 minus upon K dash. What is this K called? K is called equilibrium constant. This equilibrium constant. Now K into K dash is equal to barium ion into SO4 ion, and this is called as, denoted as KSP, SO4, and this is called as solubility product. This is called as solubility product. Okay? KSP is solubility product. Okay? तो ये है solubility product, उसका डेफिनेशन क्या है मैं दूंगा, जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट का डेफिनेशन है कैल्शियम फ्लोराइड, CF2, तो कैल्शियम फ्लोराइड solid, what you'll get, calcium ion aqueous, fluoride ion aqueous, लेकिन दो कैल्शियम फ्लोराइड है, and there will be equilibrium. Either one है either two है, these are called as coefficient. What they are called as coefficient. ओके, अब इसका क्या आएगा बोलो बेटा, कि कैल्शियम +2 फ्लोराइड स्क्वायर, जो कोएफिशिएंट वो पावर बन जाता है। अब इधर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 नहीं अपॉन कैल्शियम फ्लोराइड, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसलिए कैल्शियम फ्लोराइड इज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मानते हैं बिकॉज बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, उसको के डैश मानेंगे, के इंटू के डैश इज इक्वल टू कैल्शियम फ्लोराइड, sorry, into square, and this is KSP. This is solubility product. डेरिवेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अभी एग्जांपल तीसरा डायरेक्टली लिखने का देता हूं, बिस्मथ सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड Bi3SO2, तो Bi3S2, सॉरी Bi2S2 है, सॉरी Bi2S3,
So this will give you, this is solid, will give Bi 3 plus S minus 2. तो ये 2 ये 2 है इसलिए 2 डालेंगे, S 3 है तो 3, ये इनका कोएफिशिएंट। 2 बिस्मथ, जब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो 2 बिस्मथ आयन फॉर्म होते और 3 सल्फाइड आयन। Okay, and directly we'll get now KSP is equal to Bi3 square coefficient to S minus 2 the whole cube, ये KSP। चौथा एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम फॉस्फेट। Ca3 PO4 2 times, calcium phosphate solid, calcium plus 2 3 times plus 2 times phosphate, तो ये क्या आएगा, केएस कैल्शियम आयन 3 times phosphate ion 2 times, and this is solubility product। तो मैं 4 एग्जांपल दिया ये का लिखने का तरीका। आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, थ्री multiplied by 4 is equal to 12. So what is 12 called? Is a product of 3 and 4. 12 is product of 3 and 4. वैसे solubility product में भी वही टर्म यूज है। What is solubility product? हाँ, K into K dash नहीं, but what is K? What is K वो नहीं। What is solubility product? कैसे डिफाइन करेंगे? How you will define solubility product? Product of K and K dash. क्या? Product of and K dash. K and, but what is K? Equilibrium constant. Equilibrium constant, लेकिन उसको डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे? Sir, amount of compound dissolved हाँ, in a aqueous medium. वो that is aqueous medium। हाँ, amount of substance dissolved that is called as an solubility। ये solubility product है। What is solubility product? See here. In saturated solution, in the saturated solution, of sparingly soluble salt,
the product of concentration of its constituent ion, समझे, एक वर्ड को मैं समझाऊंगा. Concentration of its constituent ion raised to power the power equal to their respective coefficient, in a balance equation, in the balance equilibrium expression, balance equation at a given temperature. Is called solubility product. Is called solubility product. देखो, in a saturated solution of sparingly soluble salt, ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिया, सब के सब sparingly soluble salt, यानी कम डिसॉल्व होते हैं, उनका जो सॉल्यूशन रहता है वो सैचुरेटेड रहता है. द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, मैं ये एग्जांपल देता हूं कैल्शियम का, कैल्शियम फॉस्फेट का, कि ये एकदम करीब है, इसलिए कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. यानी कैल्शियम मिलते उसे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बनते. तो कैल्शियम फॉस्फेट के कौन से आयन है? कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन. कॉन्सेंट्रेशन, तो इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, so in a saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium constituent ion, तो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, फॉस्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन raised to 3 raised to 2 raised to पावर. कैल्शियम के ऊपर 3 का पावर क्यों है? कि इसमें 3 कैल्शियम मिलते हैं. फॉस्फेट के ऊपर 2 का पावर क्यों है? कि इसके 2 फॉस्फेट मिलते हैं. तो ये 3 और 4, 3 और 2 को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट. तो ये कैल्शियम के ऊपर जो कोएफिशिएंट है, पावर है, वो कोएफिशिएंट है कैल्शियम का. फॉस्फेट के ऊपर जो 2 पावर है 2, वो फॉस्फेट का कोएफिशिएंट है. किसमें? इन द बैलेंस इक्वेशन. ये बैलेंस इक्वेशन है at a given temperature. So in a saturated, the sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of its constituent ion raised to power equal to the coefficient in the balance equation at a given temperature is called as solubility product, KSP. So this is a definition of solubility product. Okay, तो अभी तक हमने देखे, एक है स्पेलिंगली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और दूसरा है सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी. Okay, now what is the symbol for solubility product? Yes, my students, solubility product का symbol क्या है? S. KSP. What is the product? What is the symbol for solubility?
S. S. So S. now we are going to see relation between solubility product. इनके बीच में रिलेशन क्या है? हर एक सॉल्ट के लिए ये अलग अलग रिलेशन है, ये फिक्स रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशन है. That means we are going to see relation between S and KSP. इनके बीच में रिलेशन. Let's see. Consider sparingly soluble salt silver bromide. Silver bromide is dissolved. My general is dissolved in its saturated solution. So silver bromide will give you silver plus bromine. Let S be solubility. S be solubility of silver bromide. इसका मतलब हम कितना भी सिल्वर ब्रोमाइड डालो, ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड डिसॉल्व होगा. आप कितना भी सिल्वर ब्रोमाइड डालो, एस मोल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड डिसॉल्व होगा. अगर हम 10 लेते हैं तो ये 10s मिलेगा और ये 10s मिलेगा. अगर हम 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये हमें 100 मिलेंगे और ये भी 100 मिलेंगे. अगर हम S लेते हैं तो ये कितने मिलेंगे? S और ये S. जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतने आयोन्स मिलेंगे. जितनी सॉल्युबिलिटी है उतने आयोन्स मिलेंगे. लेट S बी द सॉल्युबिलिटी. इसका मतलब S मोल डिसॉल्व हो गया. अगर S मोल डिसॉल्व हो गया तो S पर आयन मिलेंगे, S बी आर आयन मिलेंगे. अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखो. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिल्वर आयन into bromide ion. So solubility product is equal to S KSP is equal to S square. KSP is equal to S square. तो ये रिलेशन हो गया. ये रिलेशन हो गया किसका? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का. किसके लिए? सिल्वर. हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट, लेट S बी और बेरियम सल्फेट. ये क्या होगा? बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन. बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन. सॉल्युबिलिटी S तो हमें S और S मिलेगा. तो KSP इज इक्वल टू बेरियम इंटू SO4. KSP is equal to S KSP is equal to S square. तीसरा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का. solubility of calcium fluoride
पहला इसका इक्वेशन लिखो, बोलो क्या आएगा? कैल्शियम आयन K plus 2F minus. Let S be the solubility, means S mole of calcium fluoride dissolve हो गया, तो हमें कैल्शियम S मिलेगा और फ्लोराइड 2 मिलेगा. कैल्शियम S मिलेगा और फ्लोराइड 2 मिलेगा. So what you'll get here? KSP to calcium ion F ion square. KS S into 2S the whole square. So S into 4S square. KSP is equal to 4S cube. KSP is equal to 4. KSP is equal to 4S cube. Okay? अब इसका एक जनरल फॉर्मूला है, अब मैं वो फॉर्मूला देता हूं. KSP is equal to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. Now what is x? Number of cations. Y, number of anions. Example, कैल्शियम फॉस्फेट. जब डिसोसिएट होगा तो 3 कैल्शियम मिलेंगे और 2 फॉस्फेट मिलेंगे. तो X 3 है और Y 2 है. कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, और फॉस्फेट 2 है. देखो तो इसका रिलेशन क्या आएगा मालूम? KSP इज इक्वल, इस फॉर्मूला के हिसाब से 3 raised to 3, 2 raised to 2, S3 plus 2, that is 27 into 4, S5. So what KSP is equal to 27 into 4 कितना होगा? 108, S raised to 5. So हर एक सॉल्ट के लिए KSP और S का रिलेशन अलग है, लेकिन बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट रिलेशन. This is the formula. KSP is equal to x raised to x, x raised to x plus y. X is number of cation and y number of anion. Okay, so this, now what we are going to do, हम sums करेंगे numericals. आपको S दिया रहेगा, फाइंड KSP, और वाइस वर्सा, यानी KSP दिया रहेगा, S निकाल लेगा. रहते और दूसरा कुछ नहीं. बहुत सिंपल सम रहते, खाली यूनिट के ऊपर ध्यान देना है आपको, खाली यूनिट के ऊपर ध्यान रखना है और कुछ नहीं. आई एम राइटिंग एक सम दे रहा हूं. ओके, solubility product, solubility product.
of silver chloride is 1.8 into 10 raised to minus 10. Calculate its molar solubility. Its molar solubility and solubility in gram per liter. Molar mass given, molar mass of silver chloride is equal to 143.5. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1. अब सॉल्यूशन, इसका आंसर दे रहा. सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयन, क्लोरीन. x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1. तो Ksp ऑफ सिल्वर क्लोराइड is equal to x raised to x, y raised to y, s plus y. 1 raised to 1, 1 raised to 1, s raised to 1 plus 1 equal to s square. That is equal to s square. Ksp is equal to s square. अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है कितना, 1.8 minus 10. Therefore s is equal to square root of 1.8 raised to minus 10. Square root of 1.8 is 1.32, 1.342. Square root of 10 raised to minus 10 is 10 raised to minus 5. Square root of power is always half, and इसका जो यूनिट होगा वो मोल पर डीएम क्यूब होगा या मोल पर लीटर होगा. तो आपको सॉल्युबिलिटी मिल गई मोल पर लीटर में. मोल पर डीएम क्यूब या डीएम क्यूब लीटर, डीएम क्यूब मीन्स लीटर. तो आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही होता. लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए था, मोलर. मोलर सॉल्युबिलिटी मीन मोल पर डीएम क्यूब. अब सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर लीटर. मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मोलर मास. तो S इज इक्वल टू 1.342 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. मोलर मास कितना दिया सिल्वर क्लोराइड का, 143. You will get answer 1.92. इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 रेज टू माइनस 3 ग्राम पर लीटर. को दो आंसर मिल गए, एक मोल पर लीटर में और दूसरा ग्राम पर लीटर. ग्राम पर लीटर में करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास दिया है सिल्वर क्लोराइड.
Molar mass means molecular weight. Okay. Next, और एक सम करते हैं. क्या वो सम है, याद नहीं आ रहा है. सम कुछ दिलो नहीं है. देखता हूँ किधर दिया है. ओके. Solubility of barium sulfate. Second sum. Solubility of barium in water. Of barium in water is 0.07 into 10 raised to minus 5 mole per dm2. Its solubility product. Calculate its solubility product. Barium sulfate, barium ion plus SO4 ion. X is 1, Y is 1. एक कैटायन है, एक एनायन. तो KSP is equal to X raised to X, Y raised to Y, S raised to X plus Y, 1 raised to 1, 1 raised to 1, S raised to 1 plus 1, that is S square. S की वैल्यू दी है, सॉल्युबिलिटी. आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है. And 0.07 into 10 raised to minus 5 the whole square. So 1.07 square is 45 into 10 raised to minus 10, that is KS. Okay, so this was solubility and solubility product. Solubility रहेगी तो solubility product निकाल सकते, solubility product है तो solubility निकाल सकते. Now next part of solubility. Now we are going to see what you mean by precipitation. Precipitation and condition for precipitation.
Okay. When two solutions are mixed, a solid substance is formed. Which is called precipitate. Precipitate. We write it as PPT. And the process is called precipitation. Example देता हूं. If you take sodium chloride solution and mix with silver nitrate solution, aqueous, दोनों पानी वाला solution, दोनों कलरलेस होते हैं. इसका ऐसा दिखता है, पानी ही दिखता है वो. एक में सोडियम क्लोराइड होता है, दूसरे में. ये दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं तो हमें एक व्हाइट सॉलिड मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. व्हाइट सॉलिड का मतलब ऐसा धुंधला सॉल्यूशन मिलेगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट. दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट. व्हाइट प्रेसिपिटेट, मैं प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिखता हूं. मैं लिखता हूं, लिखते हैं सब लोग व्हाइट पीपीटी. सो दिस a white precipitate is formed and this is the solution. Okay. अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किससे बना? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किससे बनता है? इससे क्लोराइड मिलता है, इससे मिलता है सिल्वर आयन. ये दोनों कंबाइन होते एंड यू गेट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट है इसलिए इसे सॉलिड लिखा जाता है और एरो नीचे रहता है. एरो नीचे का मतलब प्रेसिपिटेट. ओके. सो सोडियम क्लोराइड में आयन, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर आयन आपस में कंबाइन होकर सिल्वर क्लोराइड बनते. अब प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रेसिपिटेट है. ये कैसे फॉर्म होता है? इफ यू टेक मैग्नीशियम क्लोराइड and mix with sodium hydroxide, you get magnesium hydroxide, which is a P plus sodium chloride. Okay, which is a PPT. Now ये कैसे मिलता है? इससे मिलता है मैग्नीशियम आयन और इससे मिलता है OH आयन. 2 OH, ये दोनों आपस में कंबाइन होके एंड फॉर्म करते मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ पीपीटी. सो प्रेसिपिटेट के लिए एक सॉल्यूशन से कैटायन मिलता है, दूसरे सॉल्यूशन मिलता है, दोनों आपस में कंबाइन, दे कंबाइन एंड फॉर्म अ पीपीटी. नाउ पीपीटी फॉर्म होने कंडीशन होते हैं. पीपीटी इज फॉर्म, कुछ कंडीशन होते हैं. ऑल पीपीटीज, ऑल आर स्पेरिंगली soluble salt. Sparingly soluble salt. Therefore, they have KSP. Therefore, they have KSP. All PPTs are sparingly soluble salt. Therefore, they have KSP. हर PPT की KSP वैल्यू होगी.
कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल। ना पीपीटी कब फॉर्म होगी? अब प्रेसिपिटेट इज फॉर्म if of precipitate is greater than the product of PPT, then a PPT is formed. Second, if ionic product of T is less than KSP of PPT, then no precipitation takes place. Then no precipitation takes place. Third, if ionic product of PPT is equal to KSP of PPT, then the solution is saturated. Then the solution is saturated. Now what is this ionic product of PPT? Ionic product of PPT का मतलब क्या? एग्जाम्पल देता हूं मैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मिक्स करेंगे तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी मिलती है। इट इज अ पीपीटी। इसमें से हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम आयन। इसमें से हमें क्या मिलता है? OH आयन। सो मैग्नीशियम आयन प्लस OH आयन स्क्वायर कि 2 है और मल्टीप्लाई magnesium ion into OH ion square is called as ionic product of PPT. इसका मतलब जिस आयन से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस आयन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ पीपीटी बोलते हैं। जिस आयन से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस आयन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ पीपीटी बोलता है। अभी पीपीटी तो इसका के होगी, इट विल हैव केएसपी वैल्यू। इफ आईपी का मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ पीपीटी is greater than KSP of PPT, precipitation will occur, यानी precipitate form होगा। If IP of PPT is less than KSP of PPT, then no precipitate will. And if IP of PPT is equal to KSP of PPT, precipitate solution will be saturated. Will be saturated. अब इसके पर एक सम करते हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा।
एक या दो सम करते एंड देन वी कैन कंप्लीट द चैप्टर. चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ. Numericals on precipitation. पहला, if 20 cm cube of 0.05 molar barium nitrate are mixed with 20 cm cube of 0.02 molar sodium fluoride, will sodium fluoride precipitate? Will sodium fluoride precipitate? Question. Ksp of sodium fluoride of Ksp of barium fluoride is equal to 1.7 into -6. ये गिवन है. तो देखो barium nitrate mixed with sodium, you get barium fluoride, which is a precipitate plus 2NaNO3. यानी इससे मिलता है बेरियम आयन, इससे मिलता है फ्लोराइड आयन, दो फ्लोराइड आयन, बेरियम फ्लोराइड मिलता है. ओके. अब इधर क्या बोलता है, या 20 ml is mixed with 20 ml of barium नाइट्रेट मिक्स किया किसके साथ, सोडियम फ्लोराइड के साथ, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं फॉर्म होगा. विल barium fluoride precipitate will be formed or not? barium fluoride precipitate होगा या नहीं होगा. So let's see. ठीक है. 20 ml of barium कितना है कॉन्सेंट्रेशन उसका, 0.05 barium nitrate is mixed with whom, 20 ml, cm की जगह ml लिखता हूँ, cm cube means ml of 0.02 molar sodium fluoride. So total volume of the mixture
is equal to 20, that is 40. Total volume of the mixture is 40 ml. ये 20 और 20 दोनों मिक्स करेंगे तो 40. तो 40 है तो इसका मतलब बेरियम नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा. ये 0.0 है तो 40 में कितना होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट will be equal to 20 into 0.05 40. And that is equal to 0.025 mole. उसी तरह concentration of sodium fluoride is equal to 20 into 0.02 upon 40, and that is equal to 0.01 molar. Okay, ये होगा बेरियम नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट इन मिक्सचर, दोनों को मिक्स इन मिक्सचर. अभी हमने अभी देखा क्या, दो बेरियम एक फ्लोराइड कंबाइन होंगे तो हमें बेरियम फ्लोराइड का पीपीटी मिलता है, पीपीटी फॉर्म होता है. सो आईपी ऑफ प्रेसिपिटेट is barium ion concentration into fluoride ion concentration air. What is barium ion concentration? 0.025. What is fluoride ion concentration? 0.01 स्क्वायर. स्क्वायर क्यों? कि दो फ्लोराइड. तो आईपी ऑफ बेरियम फ्लोराइड पीपीटी इज दिस बेरियम आयन. तो ये क्या होगा? 0.025 इंटू 0.01 इंटू 0.01. तो ये कितना होगा? 2.5 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2, and that is 2.5 into 10 raised to minus 6 AP of barium fluoride. What is KSP of barium fluoride? आपको दिया है, गिवन दिया है. So 1.6 into 10 raised to minus 6. And 6 into 10 raised to minus 6. 1.7, sorry. 1.7. अब बताओ कौन ज्यादा है, आईपी ज्यादा है कि केएसपी ज्यादा है? आईपी ज्यादा है कि केएसपी ज्यादा है? अरे 2.5. IP. 10 raised to minus 6 is greater than 1.7 into 10 raised to minus 6. Therefore, as IP of barium fluoride PPT is greater than KSP of barium fluoride PPT, precipitation, barium fluoride will precipitate from the solution.
हो गया। ये तुम्हारा नाउ नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा एंड वो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Solution and colligative properties. I'll be starting this chapter. Okay. Okay. We stop for today.